آج کی اس محفل عطا رسول سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بارگاہ ہندوستان میں ہے، لیکن خواجہ غریب نواز بر صغیر کی ہر عاشق رسول کا دل میں ہے، ہر عاشق کا دل میں خواجہ معین الدین ہے، لیکن معین الدین کا وہ منظر ازمیر محلہ ہندوستان کی سرزمی میں ہے۔ اللہ نے ایشیا کو عزت عطا فرمایا ہے تو وہ معین الدین کا ذریعہ ہے۔ مصطفیٰ نے معین الدین کو ہندوستان نہیں گٹا ایشیا মহাদেশের চাবি দিয়েছেন দ্বীন ইসলামকে প্রচার করার জন্য। আজ জিনার মাহফিলে আমরা বসে আছি, বলুন আলহামদুলিল্লাহ। 28 জানুয়ারি 2023 শনিবার বিকাল 3টা হতে স্থান হযরত কুশাল শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি জামে মসজিদ হাটাজারি, আমান বাজার, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। খাজা গরিব নওয়াজ রহমতুল্লাহ আলাইহির কনফারেন্স সভাপতি জাহানশীন ফকিহ বাঙ্গাল খলিফায়ে মুর্শিদিনা اختر رضا خان علیہ الرحمت و رضوان المعروف حضور تاج الشریعہ، پیر طریقت حضرت علامہ مفتی قاضی محمد شاہد الرحمن ہاشمی صاحب قبلہ مدث اللہ العلی بارک اللہ فی حیاتی، شجاد نشین عالمین ہاشمیہ دربار شریف، شیخ الحدیث عالمین باریہ کامل ماڈل مدرسہ و خطیب حضرت کشال شاہ جامع مسجد، یعنی اسی مسجد کی خطیب صاحب ہیں، اور مقرر خصوصی میرے پیارے بھائی بلبل بنگال حضرت ابو الحسین شاہ بدری علیہ الرحمہ کی اولاد حضرت علامہ مجاہد ملت مفتی شاہ فیض الکبیر بدری نیلفماری مدث اللہ العلی دامت برکاتہم العالیہ بارک اللہ فی حیاتی، حضرت مولانا نظام الدین انواری صاحب قبلہ مدث اللہ العلی، حضرت مولانا قاری حسن الدین قادری رضوی مدث اللہ العلی، اور دیگر جتنا علماء کرام کا نام میں نہیں جانتا ہوں، جو کوئی بھی یہاں آیا ہے سب کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا، برابر ہے نا؟ آپ لوگ بھی واز کرنا پڑے گا تب میں واز کروں گا۔ پیر صاحب قبلہ یہاں بیٹھے ہیں، حضرت کی محبت پہ یہاں آیا ہوں۔ سب سے پہلے تو حضرت میرے مرشد نما ہے، میرے پیر و مرشد کا خاص خلیفہ ہے، اور میں ان کا خاص غلام ہوں۔ اس محبت سے ہاشمی دربار کا ساتھ ہمارے رشتہ دلی رشتہ ہے، روپیہ اور ٹاکا پیسہ کا رشتہ نہیں ہے، ہم ٹاکا کا پیچھے نہیں گھومتے، ہم جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کی چاہنے والا ہے، جہاں جہاں غریب نواز کی غلام ہے وہاں ہم جاتے ہیں۔ آج بریلی والوں کو اجمیر کا خلاف بھڑکانے والا ہے، آج بغداد والوں کو بریلی کا خلاف بھڑکانے والا دنیا میں ہزاروں خانقاہ ہے، لیکن آج بھی اگر غریب نواز کو یاد ہے، غریب نواز منا رہا ہے تو اور کوئی نہیں ہے، یہ تاج الشریعہ کا نائب ہے، یہ بریلی کا سجاد نسیم کا نائب ہے، ہزاروں نہیں 10 لاکھ لوگوں کا مرشد ہے تاج الشریعہ، جن کا خلیفہ اپنی طرف سے یہ محفل سجایا ہے۔ سجایا تو کس کا ہے؟ وہ عطا رسول سلطان الہند کا۔ کون تھے غریب نواز؟ ہم غریب نواز پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ غریب نواز ہندوستان میں آنے سے پہلے آقا نامدار کی بارگاہ میں گیا ہے، اور آقا علیہ السلام سے فرماتے ہیں میرے نانا جان میں یہاں سے ہندوستان جا رہا ہوں، لیکن میں ہندوستان کا راستہ مجھے نہیں معلوم ہے، میرے آقا نے بتایا معین الدین یہ ہے ہندوستان کی نقشہ، یہی سے تم وہاں جاؤ گے، یہ راستہ ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچو گے۔ میرے آقا سے معین الدین اجمیری کہتا ہے یا رسول اللہ میرے نانا جان میں تو ہندوستان جا رہا ہوں برابر ہے، لیکن میں وہاں اکیلا نہیں رہ سکتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں معین الدین تم جاؤ ہندوستان
मुस्तफा आया तो कैसा आया, वैसे आलीशान दरवाजा है गरीब नवाज तेरा, तुझको देखने आते हैं मेरे मदीना वाला। आया तो एक तरफ का दरवाजा को जन्नती दरवाजा ऐलान कर दिया है, उस दरवाजा से मुस्तफा आते जाते थे। मेरे मुस्तफा जब आते थे गरीब नवाज के दरबार पे, आज लोग आता है रसूल कहने से जलना शुरू हो जाता है। मुस्तफा ने अता किया, कौन हैरत करने वाला, मेरे रब ने मुस्तफा को अता किया है, मुस्तफा ने गरीब नवाज को अता किया है। रब्बुल जलाल के पैगंबर फरमाते हैं व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती, मेरे रब मुझे देता है, मैं अपनी उम्मतों को बांटता हूँ, बांटने वाला तकसीम करने वाला रसूल करीम है, लेने आता है, लेने वाला गरीब नवाज है। तो हम कहते हैं लेने आता है इसको, देने आता है उनको, उन्होंने लिया है, इन्होंने दिया है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? गरीब नवाज को देने वाला मुस्तफा है। हा? क्या दिया है? पूरे हिंदुस्तान, एक मोहल्ला नहीं है चट्टग्राम, बांग्लादेश भी पहले हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान और बड़े सगीर में बहुत सारी 2-4 देश मिलाकर ये अखंड भारत कहता था। इस हिंदुस्तान की बादशाह है, हिंदुस्तान की आता है रसूल। नाज करो मुसलमानों, हम सुन्नी है, हमारी इमाम तो ही सुल्तानुल हिंद है, हम जिसकी छाया के नीचे है वो गरीब नवाज है। आज भी अजमेर मोहल्ला में जाओ, शाहजानी मस्जिद पे खड़ के पूरब की तरफ जब नजर डालोगे, वो मगरिब का वक्त में आसमान की तरफ देखो तो वल्लाही अल्लाह की जात की कसम ये नजर आता है कि अल्लाह की रहमत बरस रहा है। ये है अल्लाह की वलियों की बारगाह। अल्लाह ने कुरान करीम में वलियों को चूटा नहीं किया, वलियों को जलील नहीं किया। अल्लाह ने यह महफूज कुरान 6666 आयात नाजिल फरमाया, उसने वलियों का भी जिक्र किया, नबियों का भी जिक्र किया, अच्छा बंदा जो है मेरे रब का उनका भी जिक्र किया। अल्लाह ने कुरान करीम में वलियों का जिक्र किया है। मुल्ला को बड़ी तकलीफ होता है, मुल्ला बिदात कहता है कि ये बिदात खुदा को नहीं मालूम था। मुल्ला का फतवा में वलियों का जिक्र बिदात है, अल्लाह का फतवा कुरान में है कि इनका कोई खौफ नहीं है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह कह रहा है जिसको मैंने अपना दोस्त बनाया, ना उसका दुनिया में कोई खौफ है, ना कब्र में है, ना मैदान महाशर में है, ये सब मेरा है, मेरा है। मुल्ला कहता है कि गरीब नवाज कौन होता है, उनका क्या वक़ाब है? गरीब नवाज कौन होता नहीं है, इनको बनाया गया है। और अता किसने किया है? तुम जिस नबी को मुर्दा कहते हो ना, वही नबी ने अता किया है गरीब नवाज। तुम्हें चाहिए गुलामी में नाम लिखाओ, बादशाह बनोगे तो नहीं होगा, तुम गुलाम वली बनोगे तभी तुम्हें वही तोहफा मिलेगा जो तोहफा अल्लामा सैयदुर रहमान हाशिमी साहब को मिला है, जो तवज्जो अजमेर मोहल्ला से सुल्तान बरेली से मिला है, वो तवज्जो तुम्हें भी मिलेगा, तुम भी बन जाओ उसी तरह आशिक रसूल। हिंदुस्तानी को फख्र है गरीब नवाज, और सारे दुनिया की सुन्नियों को फख्र है गौसे पाक पर। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन बगदाद की मस्जिद पे नमाज पढ़ाया ईशा, गरीब नवाज भी हाजिर है। गौसे पाक ने कहा काल फजर का नमाज जो जो मेरा पीछे पढ़ेगा वो जन्नती है, इस बात को बाहर जाके किसी को कहने वाला जहन्नमी है। समझ में आया? बुच्चे काला करा बुच्चन हाथ थोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उर्दू में ना। तो कहा जिसने ये बात बाहर जाके किसी को कहा तो वह जहन्नमी है। गरीब नवाज ने ये चिंता किया, ये सोचने लगा
मैं एक मईनुद्दीन अगर जहन्नम में चले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे मोहल्ला वालों को बता दूंगा अभी कि काल का फजर पढ़ने वाला गौसे पाक का पीछे सब जन्नती है। महीनुद्दीन ने सारे मोहल्ला वालों को बताया फजर की नमाज गौसे पाक का पीछे पढ़ो तो जन्नती है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फजर की नमाज से पहले देखा उस मस्जिद का बाहर हजारों की तादाद में लोग खड़ा है। गौसे पाक ने कहा मैंने 4-5 लोगों को बताया था, ये बात किसने जाकर बताया? सारे मोहल्ला वालों को। गौसे पाक का सामने कोई खड़ा होने का वकाद नहीं है, सब डर गए। हजरत गरीब नवाज ने कहा मामा जान मैंने बताया। क्या कहा? मैंने बताया। हजरत गौसे पाक ने फरमाया आप क्यों बताया? मैंने तो आपको माना कर दिया था, तो आपने क्यों बताया? मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं मैं एक महीनुद्दीन जहन्नम में चले जाऊं, मेरे आका की हजारों उम्मत जन्नत में जाए, उससे तो बेहतर है कि मैं जहन्नम चले जाऊं और सारे उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्नत में चले जाए। तो गरीब नवाज ने तभी भी मेरे नबी का उम्मतों के लिए सोचा है। तुम सोचते गरीब नवाज अपने फिक्र के लिए हिंदुस्तान में आया है? नहीं, मुस्तफा का एजेंडा वास्तवायन करने এখানে এসেছিলেন হিন্দুস্তানে। ওইটা ছিল রসুল করিমের খাস করম গরিব নওয়াজের প্রতি। হিন্দুস্তানে পাঠিয়েছিলেন গরিব নওয়াজকে। মেরে মুস্তাফা রসুল করিমের অর্ডারে উনি আসছিলেন হিন্দুস্তানে। উনি এখানে বাদশাহী দখল করার জন্য আসেন। বোঝা গেল উনি বাদশাহী করার জন্য আসেন নাই। नबी मुख्तार कुल है जिससे चाहे अता कर दे। नबी ने गरीब नवाज को फकीर और दरवेश का हालत में हिंदुस्तान में भेजा। कैसा? फकीर का हालत में। बराबर है? समझ में आ रहा है ना? फकीर का हालत में भेजा हिंदुस्तान में, लेकिन आया बन गया बादशाह। अता किया मुस्तफ़ा ने वो शाह अलीशान बादशाही। सारे दुनिया की मुसलमान क़यामत तक आने वाला आशिक़ रसूल जिसका दिल में मुस्तफ़ा के ईमान की नूर होगा वह गरीब नवाज को अपने इमाम तस्लीम करेगा। गरीब नवाज आज के लिए नहीं है, 1-2 लोगों को मुसलमान नहीं बनाया, हिंदुस्तान में सारे मुसलमानों को मुसलमान बनाने वाला गरीब नवाज है। और अल्लाह की रसूल की औलादों का कुर्बानी हिंदुस्तान में शुरुआत में था, अभी भी है, क़यामत तक रहेगा। गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान अजमीर मोहल्ला में जब आया, उससे पहले अजमीर मोहल्ला का हालत यह था कि वहां की लोगों ने, वहां मुसलमानों का कोई नाम निशाना नहीं था। जब गरीब नवाज आया, एक एक करके, एक नहीं 90 लाख मुसलमान हुआ गरीब नवाज का हाथ में। तो ये किसका करम है? कलमा किसका पढ़ाया है? नबी का। नबी का कलमा पढ़ाने वाला इमामुल मुस्लिमीन सैयदना ख्वाजा मईनुद्दीन को बिदाती कहने वाला वहाबी बदनसीब है ना? क्या गरीब नवाज बिदाती है? आज कहते हैं अजमीर एक बिदात का अड्डा है, वहां जाके लोग सजदा मारते हैं। आज तो खुल्लम खुल्ला कह देते हैं। शुक्र करो अल्लाह की जो वली गरीब नवाज तुम्हें मिला है। बेवकूफों को समझाओ, दुनिया की रोड में अगर चलते वक्त तुम्हें, दुनिया की रोड में अगर किसी लाइट, जो लाइट लगा हुआ रहता है ना, लाल कलर का, हरा कलर का, ग्रीन कलर का, गाड़ी इस तरफ से जा रहा है, लाइट कलर अगर लाल है तो यहां रुकना है, वो जब सबूज हो जाएगा तब जाना, ठीक है ना? वो अगर लाल होते वक्त में आपने वो लाइन क्रॉस किया तो जरूर आप पर पेनल्टी या फाइन होगा। बराबर है ना? आपने लाइट
ओवरटेक किया तो क्या हुआ, आप पर केस दर्ज हो गया, बराबर है ना, मामला हो गया, मुकदमा हो गया। जब आपने अल्लाह की दीन की लाइट ओवरटेक करोगे तो दीन से निकल जाओगे। अल्लाह की दीन का लाइट गरीब नवाज है, आला हजरत है, शहंशाह सीकुट है, आलमीन हाशिमिया दरबार की औलिया कराम है, बगदाद मोहल्ला की सरकार बगदाद है। अल्लाह की दीन का लाइट ओवरटेक करोगे तो सीधा लाइन से निकल जाओगे और तुम बगैर ईमान का जहन्नम में जाओगे। कोई वली का दुश्मन कभी नबी का चाहने वाला नहीं हो सकता। नबी का चाहने वाला वो है जो गौस ख्वाजा रजा का मानने वाला है, जिसका दिल में ख्वाजाए अजमेरी होगा, उसका दिल में कुफरों का मोहब्बत नहीं रहेगा। जिसका दिल में मईनुद्दीन अजमेरी है वह काफिरों को मोहब्बत नहीं करेगा। जिसका दिल में इमाम अहमद रजा खान बरेलवी है उसका दिल में कभी नफरत भरी वहाबियों का मोहब्बत नहीं होगा। तुम दिल को अगर सीनाए मदीना बना के रखते हो ना, तो इसको साफ करने के लिए इमाम अहमद रजा को अपनी अकीदा का इमाम समझो, तभी समझ में आएगा कौन है गरीब नवाज। गरीब नवाज पर उंगली उठाने वाला तभी था, अभी है, कयामत तक रहेंगे। हिंदुस्तान में एक मौलवी हमारी कर्नाटक बेंगलुरु की है, उसका नाम अंजर शाह था। लोगों ने उसको बंदर शाह कहना शुरू कर दिया। हम लोगों ने 2-3 प्रोग्राम में उसका नाम बंदर शाह कहकर पुकारा था, तो नाम ही लग गया बंदर शाह। उसने ख्वाजा गरीब नवाज को हिजड़ा तो गाली दिया, बोलिए माज़अल्लाह। अल्लाह की फजल करम हुआ, उसकी किसी ना किसी टेररिस्ट से ताल्लुकात था और अंदर चला गया तिहाड़ जेल में, दिल्ली में। अभी भी वही मर रहा है, वो हरामखोर जो वली का नहीं, वो दुनिया में रहने का लायक ही नहीं है। समझिए, हम वलियों से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो मुस्तफा तक पहुंचने का एक रास्ता है। अगर गरीब नवाज तुम्हें तकलीफ है गरीब नवाज का नाम से, ठीक है, हमें कोई हमारे पास इसके इलाज नहीं है, लेकिन ख्याल रखना, तुम कहते हो रजब में गरीब नवाज का उर्स क्यों मनाते हो, 11वीं में क्यों ख्वाजा ये सैयदना गौसे पाक का उर्स मनाते हो, और रजब और सफर में क्यों आला हजरत का उर्स मनाते हो, तो हम ये कहेंगे आप लोगों ने शादी किए বিয়ে করছেন, কারা কারা করছে, ভুলে গেছে অনেকে বিয়ে করছে কি না করছে। যারা বিয়ে করেছেন, আপনারা বিয়ের আগে আপনাদের শ্বশুর বাড়ির সাথে কি সম্পর্ক ছিল? সম্পর্ক ছিল কিছু আগে, কিছু এখন ইয়ং জেনারেশনের থাকতে পারে, ওল্ড মডেল যারা আঙ্কেলরা আছেন নেই, বেশিরভাগ না থাকার, কিন্তু থাকলেও ওই সম্পর্কটা কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ি শালাশালির সম্পর্ক হয় না। ওইখানে আপনি যখন ওই মেয়ের সাথে সম্পর্ক নেই, তখন তার মা বাবার সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। যেদিন আপনি বারাত নিয়ে গেলেন, ওইখানে গিয়ে কবুল বললেন, বলার পরে ওই মেয়ের ছোট ভাই আপনাকে দুলাভাই বলে ডাকে, হ্যাঁ, ওই মেয়ের আব্বা জামাই বাবু বলে, ওই মেয়ের আম্মা আমার দামাদ আসছে বলে মাথায় কাপড় দে। এর আগে সম্পর্ক ছিল না, आपने कबूल कहा और रिश्ता जुड़ हो गया। अब सारे रिश्तेदार उस बच्ची की तुम्हारी रिश्तेदार है और तुम्हारी रिश्तेदार उसकी रिश्तेदार है। अगर अपनी तालाक दिए दिलेन और কোনো সম্পর্ক থাকবে? থাকবে? দুলাভাই বলবে, শ্বশুর বলবে, আব্বাজান আসছে বলবে, এই বিয়াদ্দব আমার মাইয়েরে তালাক দিছে, আর সাথে গালি দেবে না? অবশ্যই।
ওইভাবে আমরা এর জন্য উরুস মানাই, কারণ হচ্ছে ওরা মুস্তাফার রিশতেদার, আহলে মুস্তাফা, গরিব নওয়াজ, গৌসে পাক, এরা হচ্ছে না আহলে मुस्तफा। रसूल ने जाके जाके कबूल किया, जिनको मुस्तफा ने कबूल किया उनके लिए सारे वली रिश्तेदार है, जिनको रसूल ने तलाक दिया उनके लिए कोई रिश्तेदार नहीं है। तो वहाबीरा तलाक पत्तो खारिज हो गया, तलाक पे खारिज निकाल दिया गया। तलाक का बाद जैसे जमाई को निकाल दिया जाता है ना, वैसे निकाल दिया गया है। सुन्नियों को कबूल किया, हमें क्यों ना कबूल करेंगे आका। हम तो ये कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी है। ये तोहफा देने वाला सुल्तान बरेली इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान ने हमें वैसे ऐसे कलाम अता फरमाया, जब पढ़ते हैं तो गुस्ताखों का दिल में आग लग जाता है, आशिकों का दिल नरम हो जाता है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, मदीना सीना में बख्शना हो शुरू हो जाता है, सीना का रिश्ता मदीना से बन जाता है। इसलिए हम सुन्नियों कहते हैं ज्यादा से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करो, वलियों को समझो, वलियों का साथ दो, नबी का फरमाबरदार बनो। गुस्ताखी करे कि कखनो আল্লাহ পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, সমঝে আমরা তো বড় বিপদে আছি এখন। তারা ওলি ওলি করে, আমরা ওলিদের পিছনে কেন যাব? আমরা তো ডাইরেক্ট আল্লাহ হয়ে যাব। अरे अल्लाह को डायरेक्ट तुझे भेजना था तो आदम को क्यों बनाया? तुझे कुरान डायरेक्ट देना था तो मुस्तफा को क्यों बनाया है? हाँ, अल्लाह डायरेक्ट कुछ भी नहीं देना चाहते हैं बंदा को। हाँ, कभी देंगे तो जब तू मुस्तफा का बन जाएगा, जब तेरे दिल इसके मुस्तफा में मुतमईन तौर से मुस्तफा को नबी तस्लीम करेगा, तब तुझे सारे दौलतें मिलेगा। जब तू अल्लाह पुकारेगा तो अल्लाह कहेंगे मेरे बंदा मसला क्या है बता। वहाबीরা মনে করে যে আমরাই তো সর্বে সর্বা তৌহিদের উপরে। আমরা যদি কোরআনের একটা সূরা দেখি, সব থেকে ছোট মনে করেন, যাই সূরা দিয়ে আমরা তৌহিদকে জিন্দা করার চেষ্টা করি, আমরা আল্লাহ ওয়াহদাহু লা শরীককে এক বলে প্রমাণ করার জন্য যেই সূরা বারবার পড়ে থাকি, ওই সূরাতে যখন আমরা শুরু করি তিলাওয়াত, আল্লাহ বলছেন কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। কি বলছেন? এখানে নবীর নাম নেই না? हाँ ऐसे चट्टग्राम का लुक चालू है, सबसे पहले जन्नत जाओगे रसूल का साथ। वहां पर अल्लाह ने कहा कुल, मुस्तफा से कहा। तौहीद से पहले रिसालत रब ने बताया, क्योंकि अगर तौहीद से पहले रिसालत ना होगा तो तौहीद को समझाने वाला को तो अल्लाह ने पहले पेश किया। मुस्तफा को प्रमोट करने वाला रब्बुल जलाल है। कहा है महबूब आप फरमाइए, आप कह दीजिए, या है महबूब तुम फरमाओ। मेरे आला हजरत ने लंबी गुफ्तगू है इसमें, तो रसूल करीम को पहले रख दिया। अल्लाह ने कहा आप कह दीजिए अपनी उम्मतों से अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह की बोलते हैं ना जे अमी एक, अल्लाह अहद अल्लाह बोलते पढ़ते नहीं, कुल क्या बोलें नबी के अल्लाह যখন ছাড়েন নাই, তুমি কে মোল্লা ছাড়নে वाला?
আল্লাহর কথা মানবো না মোল্লার কথা? আল্লাহর কথা মানবো না মোল্লার কথা? वहाबीरा फतवा रशीदिया और दीगर कुतुबों में लिखा है देवबंदी मौलवी उन्हें अल्लाह ताला मिथ्या कथा बोलते पारेन किन्तु बोलेन ना। এটা হচ্ছে তাদের আকীদা। তারা যারা আল্লাহকে মিথ্যা কথার তহমত দিচ্ছে তারা কি রাসূল বুঝবে? তারা কি ওলি বুঝবে? তারা কি সালিহিনদের ইত্তেবা করবে? কখনো না। আমার আল্লাহ বলে লা তাবদীলা লিকালিমাতিল্লাহ, আমি আল্লাহ কখনো আমার কালাম তবদিল করি না, আমার কথা বদলাই না। কিন্তু ওয়াহাবিরা বলে আল্লাহ বদলায়। আল্লাহ বলছে আমি করি না, ওয়াহাবিরা বলে করে। अल्लाह का बात मानो या मुल्ला का? मुल्ला का नहीं ना, क्यों बोलचे मुल्ला का? अल्लाह का मानूंगा, अल्लाह का मानूंगा और रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह का, अल्लाह का। ওয়াহাবিরা বলে আমরা এটা করব না যেটা রসুল করে নাই, ই উরুস করে নাই রসুল, আমরা কেন করব? বলে না? বলে কি না? ওরা বলে রসুল যেটা করছেন আমরা এটা করব না। সুন্দর কথা, যেটা রসুল করবে ওইটাই তারা করবে। ঠিক আছে, রসুল মেহরাজ করেছে তোমরা করো, পারবে? রসুল মেহরাজ করেছে ওইটা করে দেখাও। রসুলের সিনা সাফ হয়েছে, পারবে করাতে? হরে হরে হরে, ওইখানে দেখা যায় এটা করবে না, তাহলে তারা মিথ্যার উপরে আসে। ঠিক আছে, झूठ झूठे हैं इन लोग। हम कहते हैं नहीं, नबी ने जो किया हम नहीं कर सकते क्योंकि हम नबी का जैसा नहीं है। हम वही करेंगे जो नबी ने बताया है। जो नबी ने बताया আমরা ওইটাই করব যেটা নবী বলেছেন। যেটা করেছেন সেটা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না, পারবো না। ঠিক আছে না? আমরা যেটা নবী বলেছেন ওইটা করব। নবী কোথাও কি বলেছেন নেত্র নিহাজ করা হারাম? একটা হাদিস দেখাও যেখানে লেখা আছে গরিব নওয়াজের উরুস করা হারাম? নাই, কারণ তারা খুঁজবে, কারণ বেওকুফ তো, বেওকুফ। হিন্দুদের মুশরিকদের মূর্তি পূজারী যারা, মূর্তি পূজার উপরে যে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে ওইগুলো তারা কি করে, ওইগুলো টেনে হেসড়ে এনে আউলিয়ায়ে কেরামের উপরে না ফিট করে দেয়। আল্লাহ কি তার ওলিদের শানে এরকম কথা ব্যবহার করবে? এই হচ্ছে ওয়াহাবিদের আসল রূপ। এদের ওলিদের সাথে দুশ্মনী, ওলিদের সাথে দুশ্মনী থাকার কারণে তারা কামিয়াব হতে পারতেছে না। হ্যাঁ, তারা বলে প্রথমে লামাযহাবিরা এখন বলে ইমামে আবু হানিফার শানে বেয়াদবি করে। আর তাদের এক গড়িমিকার আছে, তার নাম হচ্ছে নাসিরউদ্দিন আলবানী, আর একটা আছে ইবনে তাইমিয়া। ইবনে তাইমিয়া, ইবনে তাইমিয়াকে আবু হানিফা আলাইহির রহমার সাথে তুলনা করে। আরে বেয়াদবের দল, ইবনে তাইমিয়া আবু হানিফার বাম পায়ের জুতা গ্রহণ করার যোগ্যতা তার মাঝে নেই। কোথায় ইমামে আবু হানিফা আর কোথায় এই বন্ডর দল? আমরা তো দুনিয়ায় অন্ধকারে বসবাস করতেছে, তারা বুঝে না। আল্লাহ এই কোরআনে পাকের মধ্যে রসুল এমন জাত যাকে পুরো কোরআন দান করেছেন। এই কোরআনের মধ্যে ইসলামের যে কনস্টিটিউশন, সাহেবে কনস্টিটিউশন হলেন মুস্তাফা জানে রহমত, যার শরীয়ত ও কোরআন দিয়ে, যার জবান দিয়ে যে বাণীগুলো বের হয়েছে, এই আল্লাহর তরফ থেকে ওহী আসার পরে যে বাণী বের হয়েছে ওই বাণীর নাম হচ্ছে কোরআন। এবং ওহীর পরে আল্লাহর পরামর্শ পেয়ে মুস্তাফা যে কথাগুলো বলেছেন ওগুলোর নাম হচ্ছে হাদিস। সোজা কথা। এখন অনেকেই বলে নবী বড় না কোরআন বড়, এটা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক ঝঞ্ঝাট। আরে ভাই, নবীও বড় কোরআনও বড়, কিন্তু নবী সাহেবে কোরআন, নবীর সাথে কোরআনের তুলনা করার দরকারটা কি? नबी सारे नबियों से आला कुरान। हजरत माँ आयशा कुल हुमैरा फरमाते हैं, किसी सहाबी ने पूछा माँ आयशा
जिंदगी मुस्तफ़ा का, सीरत का बारे में बताइए। तो अल्लाह की नबी का बीबी हजरत आयशातुल हुमैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कुरान उठाकर दे दिया और कहा यही जिंदगी मुस्तफ़ा का है। तो जिंदगी बड़ा है या नबी बड़ा है? नबी बड़ा है ना। कुरान को छोटा नहीं कर रहा, कुरान अपने मर्यादा पर बड़ा है, नबी अपने मकाम पर बड़ा है। नबी कभी छोटा नहीं कर सकते, कुरान कभी छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि नबी को भी अल्लाह ने अता फरमाया ये कुरान, और नबी अल्लाह की तरफ से आया है। नबी खुद ब खुद इलेक्शन से नहीं बनता है। আপনাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আসছে, ভারতেও কয়েকটা রাজ্য ইলেকশন আসছে, ভোট দিয়ে মন্ত্রী মিনিস্টার বানানো যায়, নবী বানানো যায় না। নবী আল্লাহর মনোনীত, হেড অফ দ্য মেসেঞ্জার, ফাইনাল মেসেঞ্জার প্রফেট मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फाइनल मैसेंजर। उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, जिसने उंगली उठाया वो इस्लाम से खारिज। आज कहते हैं बरेलवी मौलवी उठता है तकरीर में गाली गलाज करता है, हमने गाली नहीं दिया है, अल्लाह ने हमें कहा जो नबी का गुस्ताख है उसको दो। तब्बत यदा अबी लहब व तब, पढ़िए ये सूरा तभी समझ में आएगा। आप नबी पर चढ़ना बंद कर दो, हम तुम्हें चढ़ना बंद कर देंगे। नबी हमारे जान से प्यारे हैं, और तुम अपनी अमेरिका और रशिया के नोटों को प्यारा समझा है। हम वो नोटों पर नहीं, हम वोटों पर नहीं, हम इश्क़ रसूल पर है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा गरीब नवाज हिंदुस्तान की राजा है ना। कुर्सी में कोई भी बैठे, ख्वाजा तो मेरा राजा है। कल हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें गोटा विश्वर मानुष जाने, उन्हीं इस्लाम विरोधी एक नेता, ठीक है ना, मस्जिदेर भितरे नाम नेवा ठीक ना, उन्हीं आजमेर शरीफ एक चादर पाठाइছে विशाल अंकेर टाका दिए, कয়েক লক্ষ টাকা, এটার মধ্যে সোনা দিয়ে গোল্ড দিয়ে स्टोन দেওয়া আছে। आप समझिए, এখন বুঝেন যারা গরিব নওয়াজকে চিনে, আজকে ওই জালিম আমাদের উপর মুসল্লত হয়েছে আমাদের গুনার কারণে। হিন্দুস্তানের মসনদে যে বসে তাকে গরিব নওয়াজ বসায়, মনে রাখবেন, আমাদেরকে সাইজ করার জন্য ওই জালিম বসে। আমরা ঠিক হয়ে যাব, আমরা সিঙ্গেল ইসলাম ডিভাইডেড বাই 73, আমরা 73 ফিরকায় বিভক্ত হয়ে গেছে, তখন আল্লাহ ওই জালিমকে দিয়ে আমাদেরকে সাবুত করতেছে। কিন্তু ওলিদের প্রতি আজ দেওবন্দের নাম বদলায় বিজেপি সরকার, এসে দেবীবন্ধ করে, বেরেলির নাম কেন বদলায় না, আজমিরের নাম কেন বদলায় না? এখানে গিয়ে মাথা ঠেকে তাজিম করে। তারা জানে কর্ণাটকের হুবলিতে আল্লাহর ওলির 400 বছর পুরানো মাজারকে ভেঙে দেওয়া হয় রাস্তা বানানোর জন্য। ওই মাজারের ভিতরে 400 বছর পূর্বে যে খাফন দিয়ে আল্লাহর বান্দাকে, আল্লাহর ওলিকে দাফন করা হয়েছিল, ওই মাজারের ভিতরে খাফন সহ, ওই কাপড় সহ, যে দাড়িগুলো 400 বছর আগে যেভাবে ছিল ওইভাবে সালামত 400 বছর পরে একটা শরীরের রুম পর্যন্ত নষ্ট হয় নাই। বলুন সুবহানাল্লাহ। उस पर तो मैं कहता हूं सुन्नी हक पर है, वहां भी बातिल है, बातिल है ना। हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज क्या मजार पे जिंदा है या मुर्दा है? अगर मोहम्मद अली शाह कादरी जिंदा है तो उससे पहले इमामुल हिंद आता रसूल गरीब नवाज भी जिंदा है, शाह जलाल भी जिंदा है। शाह जलाल को मिट्टी अता फरमाया था अहमद कबीर रफाई ने अलैहिर्रहमान ने मिट्टी दिया, कहा जाओ शाह जलाल, जहां ये मिट्टी का साथ, जिस मिट्टी का ताल्लुकात है वहां आपकी आस्थाना होगा।
सीलेट की सरजमी में उस अस्ताना का ताल्लुकात हो गया, मक्का की सरजमी का मिट्टी से ताल्लुकात है, वहां इनका अस्ताना हो। तो वली खुद ब खुद नहीं आते, अल्लाह उनको भेजते हैं, अल्लाह उनको भेजते हैं। सारे हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, हम पर एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, तुम पर एहसान नामे उस्मा का, हम पर एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारे हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा। हिंदू नम के नौवत लख को कलमा पढ़ाया, हम पर एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, तुम पर एहसान नामे उस्मान का। हम पर एहसान है ना, हम पर एहसान है ना, एहसान तो है ही है, हम उसको कबूल करते हैं। अल्लाह की वलियों का बड़े एहसान है हम पर। जब अल्लाह ने वली तस्लीम, अल्लाह ने वली कहा, हमने कबूल किया, तो वलियों से रिश्ता हमारा हो गया। अजमेर वालों से, बगदाद वालों से, बरेली वालों से, हम इन तमाम रिश्तेदार को जब अपना समझा तो रसूल करीम ने हमें भी अपने करीब में मैदान महशर में जगह अता फरमाएगा। हमें जन्नत की लालच में इबादत नहीं करना है, जन्नत रहने दीजिए, जन्नत हमें नहीं चाहिए, जन्नत तो मुस्तफ़ा का है, जिसे चाहे अता करेंगे मैदान महशर में। हमें जन्नत की लालच से इबादत नहीं करना, दुनिया की दौलत की लालच में इबादत नहीं करना। हमारा काम है रसूल को राजी करना, हमारा काम है खुदा को राजी करना, जन्नत देना उनका काम है। रसूल मुख्तार कुल है, जिसे चाहे अता कर दे, जिसे मैदान महशर में रसूल का शफाअत मिलेगा वही जन्नती होगा। जन्नत रसूल का है, किसी का बाप का नहीं है। अल्लाह ने ये जन्नत का चाबी मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाया, तभी तो मुस्तफा ने खुलकर कह दिया कि सैयदी हसन वल हुसैन शबाबी अहदिल जन्न, ये दोनों जन्नत की सरदार है। बराबर है ना, ये दोनों जन्नत की सरदार है। अगर जन्नत का मालिक मुस्तफा ना होता कैसे बताता, अल्लाह ने अता कर दिया। इसलिए शेर फरमाते उससे लेना आता है, इससे देना आता है। मुस्तफा को लेने आता है, खुदा को देने आता है। मेरे मुस्तफा राज वाला, मेरे मुस्तफा मेराज वाला, मेरे रब राज वाला है। राज वाला रब ने अता किया, मेराज वाला मुस्तफा ने ले आया और तमाम वलियों को बांटा है अपने हिस्सा। बगदाद की सरकार को अता किया तो आवाज देने में मुर्दा जिंदा हो गया। बिइज़्निल्लाह कहते ही मुर्दा जिंदा हो जाता है। वह किसका आता है? मुस्तफा का आता है। वह कौसे पाक रसूल का औलादों में से है, हसानी भी है, हुसैनी भी है। तुमने करबला की मैदान में बड़ी जुल्म किया, हुसैनी नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश किया। मेरे रब ने कुरान में कहा इन्ना औतैना कल कौसर, हे मुस्तफा मैंने आपको कौसर अता किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को मिटा नहीं पाया। सारे यजीदियों ने मेहनत कर करके 22,000 का दरमियान में 72 थे, उसमें भी बच गया जैनुल अब्दीन। बोलिए सुभान। उसमें जैनुल अब्दीन भाज कर सारे दुनिया में औलादे रसूलों का, हाशमी खानदान का चेहरा जलाया है। ठीक है ना? तो करबला में इमाम हुसैन कोई कहता है पाने के लिए मजबूर थे, मजबूर नहीं थे।
पानी चाहते तो सारे दुनिया का पानी सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कदमों में आ जाता था। दलील दे रहा हूं, ख्याल रखिए चट्टग्राम की मुसलमानों, 100 साल का बाद गरीब नवाज हिंदुस्तान में आते हैं, पानी का जरूरत पड़ा तो आवाज दिया, अन्ना सागर छूटा लूटा का अंदर आ गया। उनका नाना को पानी का जरूरत होता तो दुनिया का सारा पानी सामने आ जाता था। ये एक तारीखी सवाल हम पर हमारा सामने रख दिया गया है, एक दूसरा की तन्हाई की मोहब्बत और किस तरह की दर्द होता है, उस पर मुस्तफा की नवासा ने पानी नहीं पिया। अपने बच्चा अस्कर वालक को, हजरत सैयदीना अस्कर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारा गया, जिस तरह परेशान किया गया करबला की मैदान पर। अल्लामा इकबाल ने तो शेर लिखा, मैं आया नहीं हूं बुलाया गया, मैं रोया नहीं हूं रुलाया गया, बैठे बिठाए सताया गया। वो यजीदी ওখানো আছে, ঠিক কিনা? এখন বের হয়েছেন কিছু সাহাবাই কেরামের দুশ্মন, যারা সাহাবিকে গালি দেয় তারা গরিব নওয়াজকে সামনে রাখে। আরে একটা পৃষ্ঠা দেখিয়ে দাও যেখানে গরিব নওয়াজ সাহাবাই কেরামের সমালোচনা করেছেন। এক হরফ, হুজুর বলছেন এক লাইন যদি কারো বাপের হিম্মত তাকে দেখান, আজ তোমরা সাহাবাদের সমালোচনা করে করে আল্লাহর ওয়ালিদের সাথে ফিট করতেছো, মনে রাখবেন এগুলোর হিসাব দিতে হবে। মরণের পূর্বে দিয়ে যেতে হবে এই দুনিয়া থেকে, পরের হিসাব করে এই দুনিয়াতে লঞ্চিত হবে, বেইজ্জত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। কারণ সাহাবী वो अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास है और वली रसूल का खास है। इन पर तहमत लगाना, गाली देना मुनासिब नहीं है, बिल्कुल गलत है। हजरत अमीर मुआविया हो, सिद्दीक अकबर को गाली देते। हाँ, मुझे एक मिनहाजी भाई साहब है, मैसेज किया कुछ दिन पहले, बांग्लादेश का है। अमीर मुआविया को मैं सहाबी नहीं मानता हूँ। चट्टग्राम में 13 दिसंबर को मेरा एक प्रोग्राम था, मैंने कैंसिल कर दिया। अल्लामा जुबैर रिजवी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली को मालूम है, मैंने बताया पूरा। उसने मुझे कहा आपको जितना हदिया चाहिए मैं दे दूंगा, आप सिर्फ अमीर मुआविया को गाली देना। और सिद्दीक अकबर को पहले नंबर बोलता है दनादन मस्कलंदर, अली का पहले नंबर बोलना। मैंने कहा दनादन मस्कलंदर, सिद्दीक का पहले नंबर, अली का चौथा नंबर, उमर का दूसरे नंबर, हजरत उस्मान का तीसरे नंबर, अली का चौथे नंबर। हम ना खारजी है ना राफजी है, हम अहले सुन्नत वल जमात है। हमारा अकीदा वही है जो मुस्तफ़ा ने बताया, हम ना किसी को गाली देंगे। अरे अमीर मुआविया को आपको अच्छा नहीं लगता है तो बंद करो मुंह, गाली देने का क्या जरूरत है, क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अमीर मुआविया को इनकार करना, कुरान को इनकार करना, क्योंकि वो साहिब कुरान के साथ थे, खातिब वही थे। खातिब वही को अगर इनकार करोगे, गाली दोगे, उसने कुरान का जिन आयातों को लिखा है अमीर मुआविया ने, इनका भी इनकार करना हो रहा। कुरान को इनकार करने वाला का अजर क्या होगा? जो खता था इजमाए उम्मत, वो खता इज्तिहादी खता था, उस पर हम बात कयामत तक नहीं करने वाला, ना कहा ना करेंगे ना कभी होगा। हम तो हर सहाबी को अल्लाह की रसूल ने जैसा फरमाया सहाबी का नुजूम, इस तरह हम सहाबी को मानते हैं। और अहले बैत को अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये नूह अलैहिस्सलाम का केश्ती है। नूह अलैहिस्सलामेর নৌকা, আপনাদেরকে সহজ ভাষায় বলে দিই, নৌকা, কেস্তি নৌকা একই কথা। ওই নৌকাতে বসে বসে যারা আসমানের দিকে নজর করে, আসহাবিকান নুজুম, আসমানের সিতারার সাথে সম্পর্ক রাখবে নজর দিয়ে, তারাই জান্নাতি হবে। এখানে বলেন নাই কোন সাহাবীকে গালি দেওয়ার কথা, আমাদের অকাদের বাইরে, আউট অফ কন্ট্রোল, এটা আমরা পারবো না।
ঠিক আছে না? মনে রাখবেন, সাহাবাই কেরামকে গালি দেবেন না, আউলিয়াই কেরামের সাথে দুশ্মনী রাখবেন না। কেউ মাইজবান্ডারকে গালি দে, আমি তো এখানে আসার পরে অনেক গ্রুপ, আমি 2 বছর থেকে আসি, মাঝে মধ্যে মাহফিলে আসতে হয়। কেউ বলে আপনি জুবাইর গ্রুপ, আপনি বাহাদুর শাহ গ্রুপ, আপনি নুরি গ্রুপ, আপনি জামিয়া গ্রুপ, আপনি মাইজবান্ডার গ্রুপ। আমি বললাম আমি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একজন মানুষ, আর দরবারে আলা হযরতের সাথে আমার সম্পর্ক ওই দরবার এশিয়া মহাদেশের সকল সুন্নি যে দরবারকে ইমাম মানে। আমি কাউকে পার্টিকুলারলি রেসপেক্ট করা বা পার্টিকুলারলি কাউকে টার্গেট করে এটা আমার পক্ষে নট পসিবল, আমি পারবো না। আমি সব গ্রুপের যারা আকীদায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, যারা বালাকুটি আলাকুটি নয়, তাদের পরে আমি সকলের, আমাকে যে দাওয়াত দেবে যদি সুন্নি সহিহুল আকীদা হয় আর এই শিয়া রাফজি না হয়, ইনশাআল্লাহ আমি যাব। প্রথমে তাহকিক করি আমি, ওইখানে কি কোন ধরনের উল্টাপাল্টা আছে, তারপরে কনফার্মেশন হয়। হ্যাঁ, ওইটা প্রথমে কনফার্মেশন হয়, টাকা পয়সাও কনফার্মেশন প্রথমে নয়, এটা আমাদের ফ্যাক্ট নয়। অনেকে মনে করেন টাকার জন্য, আমরা টাকার জন্য আসিনি। এটা আলা হযরতের মেসেজটা আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। গোটা বর্রে সগীরের মধ্যে আলা হযরত আজিমুল বরকাত ইমাম ইশক মহব্বতের যে আসল যে একটা আইডিওলজি, ওইটাকে আমরা প্রচার করার চেষ্টা করতেছি, এবং আলা হযরত আজিমুল বরকাতকে বাংলাদেশের জমিনে প্রচার হওয়ার আগে আলা হযরতকে বিক্রি করে খেয়ে ফেলেছে অনেক আলেম। আলা হযরতের নাম নিয়ে নিয়ে ওকে কাফির, এইকে কাফির, ওইকে কাফির, সেইকে কাফির বলে বলে মানুষকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। মানুষ মনে করে এই বেরেলি মাসলকটাই হচ্ছে তাকফিরি মাসলক। এ ধরনের কিছু না, এদের আর কোনো কাজ নাই। কুমিল্লার একটা আছে কাউয়া রাজবি, আমি তাকে বলি, যাকে খুশি তাকে কাফের, হাসান আজহারি কাফের, ফলানা কাফির, ফলানা কাফের, এ কাফের, সে কাফের। এটা কি শুরু হয়েছে? ইসলাম কি কাফের বানানোর জন্য আসছে? আলা হযরতের মাসলক কি কাফের বানানোর জন্য আসছে? রুল ত্রুটি তো মানুষের থাকতেই পারে, নিজের নফসানিয়তের জন্য কাউকে কাফির বলা এটা ঠিক হবে না। ভাইরা রে, এই মাসলকটা তো তোমার বাবাদের মাসলক না। আলা হযরতকে কেন তোমরা ইয়ে করতেছো? আলা হযরত আশরাফ আলী থানভীকে 4 বার লেটার দিয়েছেন নিজের ভুল শুধরানোর জন্য, 4 বার চিঠি লিখেছেন। আপনারা উঠা বসা করবেন না প্লিজ, বসেন। এমনিতে কাফের ফতোয়া দেন নাই, 4 বার চিঠি দিয়েছেন যে আপনার ভুলটা আপনি ঠিক করেন। উনি ওইটা না মানার কারণে লাস্টে ফতোয়া দিয়েছেন, তাও ওনার থেকে ডাইরেক্টলি নয়, মাফুন লিখে মক্কার উলামারা হুসামুল হারামাইনে সহমতি জ্ঞাপন করে মক্কার উলামায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন ওদেরকে কাফের। একেলা আলা হযরতের ফতোয়া নয়। আপনারা মনে করেন আলা হযরত মানে কাউকে কাফির বানানোর রাস্তা, নাউযুবিল্লাহ। আলা হযরতের মাসলক হচ্ছে সুন্নিয়তের মামলায় যারা সুন্নি তাদের জন্য ইশকের এক সমুদ্রের জায়গা। আলা হযরত সম্পর্কে আমাদেরকে কেউ বলে যখন আলোচনা করো, আমরা মনে করি একটা মহাবঙ্গোপসাগরের মধ্যে ছেলে আমাদের মিডিল প্রান্তে ছেড়ে দিয়েছে, সাঁতার কেটে কেটে আমরা এক কিনারায় যেতে হবে, ওইটা আমরা মনে করি। আলা হযরত এক মহাসমুদ্র ইলমের, ওইখান থেকে হাসিল করেন। ওনাকে বদনাম করবেন না, ওনাকে বদনাম করবেন না। দুরূদ পড়েন সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাজুশ শরিয়া হুজুর হচ্ছেন হুজুর যার থেকে খেলাফত প্রাপ্ত, বুঝতে পারছেন, যিনি আমাদের পীর ও মুর্শিদ। উনি বেরেলি শরীফ যখন যাইতেন, বেরেলির স্টেশনে নামার পরে নিজের জুতা খুলে হাতে নিয়ে নিতেন। বেরেলিতে নয়, আজমির শরীফে, আজমের শরীফে যিনি যখন যাইতেন ওইখানে গিয়ে জুতাগুলো খুলে হাতের মধ্যে নিয়ে নিতেন আর বলতেন ये अदब का मकाम है, यहाँ चप्पल लगाना दुरुस्त नहीं है। কি বলতেন? यहाँ अदब का मकाम है, यहाँ चप्पल लगाना दुरुस्त नहीं है। ये सिर्फ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नवासा का अकीदा नहीं है, ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद खुद আল্লামা মুস্তাফা রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন আজমির শরীফে যাইতেন সেম কাজটা করতেন। বুঝতে পারছেন?
আমরা কত আজমিরে মহল্লার প্রতি আমাদের বুজুর্গানে দ্বীনের তাজিম ছিল। আজকে মনে করে ওইখানে গিয়ে লাইভ করা সেলফি তুললেই আমি ফেমাস, তা নয়। হুজুর মুফতি আজমে হিন্দের কাছে একজন পাকিস্তানের ডক্টর মুরিদ ছিলেন। উনি আসলেন, এসে বললেন, হুজুর আমার সাথে একজন স্যার আসছেন, উনি দুইটা প্রশ্ন করবেন, আপনাকে একটু উত্তর দেবেন। স্যার যিনি আসছে উনি নাস্তিক টাইপের মানুষ, প্রশ্ন করবে। প্রথম প্রশ্ন করলো, হুজুর রসুলে করিমের মেয়ে কয়জন ছিলেন, এদের নামটা একটু বলে দিন। হুজুর মুফতি আজমে হিন্দ বসা অবস্থায় ছিলেন, ওইখান থেকে উঠে ভিতরে চলে গেল। ওই নাস্তিক টাইপের ব্যক্তি ওই মৌলানাকে বলতেছে, আরে কার কাছে নিয়ে আসলে? উনি তো একটা কথা বলার আগে উঠে চলে গেলেন, হয়তো কিতাব দেখতে গেছেন ভিতরে, যে নাম কি উনি জানে না, কিসের মুফতি কিসের আলিম, সমালোচনা শুরু করছে। সামান্য সময় পরে হুজুর মুফতি আজমে হিন্দ বের হয়ে আসলেন, দাড়ি দিয়ে পানি পড়তেছে টপকে টপকে, মুখটা ভিজা, হাতে পানি, পায়ে পানি। বললেন, হুজুর কোথায় গিয়েছিলেন? আমি ভিতরে গিয়েছিলাম অজু করতে। মনে রাখবেন, আমি ভিতরে গিয়েছিলাম অজু করতে, আমি বাগের অজু, বিনা অজুতে মুস্তাফা জানে রহমতের মেয়েদের নাম জবানে নেই না। उस घराना का मुरीद है हम पर खारजी का तहमत लगाने से पहले सोचो। हमारे मुर्शिद का मुर्शिद जिसने बागैर वजू का कभी मुस्तफ़ा का औलाद का नाम नहीं लिया, वो है मुस्तफ़ा रजा खान मुफ्ती आज़म हिंद। उन पर कुर्बान जाओ मुसलमानों। हिंदुस्तान में इस्लाम को महफूज करने वाला दरबार है, तो गरीब नवाज की प्रचार की हुई दीन को बातिलों से बचाने वाला तन्हा बरेली का सुल्तान है। ताजुश शरिया पर एक मनखबत पढ़ेंगे। मैं कोई नात खा नहीं हूं, मुझे आता भी नहीं है उतना, बस टूटा पाटा गला है, आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, फिर पढ़ रहा हूं। यह अकीदत का साथ मेरे आका ताजुश शरिया को पसंद लगे, मेरे गरीब नवाज के सदका पे मुनासिब हो तो आप लोग इजाजत देंगे? इजाजत है, हजरत का इजाजत। गुलशान आला हज़रत की वजान है, गुलशन आला हज़रत की वजान है, मेरे ताजू शरिया का क्या शान है, मेरे ताजू शरिया का क्या शान है, मसलके आला हज़रत की पहचान है, मेरे ताजूश शरिया का क्या शान है, जिसके वालिदा हफीज़े कुरान, जिनके दादा मुफासिर ईमान, जिसके नाना बरेली का सुल्तान, मेरे ताजूश शरिया का क्या शान है। गुलशान आला हज़रत की जो जान है, मेरे ताजूश शरिया का क्या शान है, जिसके बाबा वली, जिसकी ताए वली, जिसके दादा वली, जिनके नाना वली, जिसके अजमत पर हर एक कुर्बान है, मेरे ताजूश शरिया का क्या शान है। गुलशन आला हज़रत के, गुलशन आला हज़रत का वजान है, मेरे ताजूश शरिया का क्या शान है। इल्म तक़वा
की जो प्यारी तस्वीर है, इल्म तक़वा की जो प्यारी तस्वीर है, जिसने पाया अजमत की तनवीर है, इस्तिकामत की मजबूती चाहते हैं, मेरे ताजो शरिया का क्या शान है, मेरे ताजो शरिया का क्या शान है। पढ़िए, मेरे ताजो शरिया का क्या शान है, मेरे ताजो शरिया का क्या शान है, मसलक आला हजरत का जो पहचान है, मसलक आला हजरत का पहचान है, मेरे ताजो शरिया का क्या शान है। पढ़िए, मेरे ताजो शरिया का जो उलूमे रज़ाए का वारिस बना, जिसके सर फख्रे अज़हर का सहारे सजा है, वो बरेली का अख्तर रज़ा है, वो बरेली का अख्तर रज़ा है, मेरे ताजो शरिया का क्या शान है। अल्लाह ताला आप तमाम को आशिक़ रसूल में कबूल फरमाए। हज़रत की इस्तक़बाल और ख़दमबूसी का साथ इजाज़त लेते हुए मैंने जो कुछ भी कहा, सबसे पहले अल्लाह मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसके बाद आप लोगों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये अल्लाह की गर है, अगर मेरी ज़बान से कमी बेशी कोई आवाज़ कोई लफ्ज़ निकला है तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ। वस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। आप लोग दुआ कीजिए, ख़ास करके मैं गरीब फ़कीरों के लिए हज़रत की बारगाह में भी दुआ की दरख्वास्त करते हुए तमाम की शुक्रगुज़ार हूँ। बिलखुसूस मेरे प्यारे भाई बदरी साहब का बिलखुसूस हर दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे साथ जामिया से 2-3 तालिब इल्म भी आया, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और चिश्ती टीवी का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह उर्स की मंजिलें अता फ़रमाए, हर किसी को अल्लाह बड़े शान अता फ़रमाए। गरीब नवाज के सदक़ा में आज का इस प्रोग्राम को कबूल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।